Now see, this is the way you are making your format of journal entry. So you have to first write, this is sum number 1, of course. So journal entries in the books of ABC Company, which is of India. Okay. Now there are two dates which are being disclosed here. First is first date on which you are going to export the products to a company which is situated in New York, and New York is in USA. Okay, so 15th, which is the date, 15th December. That means if I write it as 15th, 1512, 1512, 2004. Okay, so this is the date on which I exported the goods to the company which is situated in New York. So whenever you export, what should be the entry, journal entry? Can anybody tell me what should be the journal entry when you are exporting the goods? Now, the company's name is Orient Traders. आप है ना Orient Traders को अपने goods बेच रहे हो, तो journal entry क्या करोगे आप? Orient Traders को goods मिल रहे हैं, तो debit the receipt. Yes, somebody is saying. Orient Trader account. Yes. Orient Traders to sales. Debit. Very good. Very good. A few of your friends have answered me correctly. I would polish it because somebody said Orient Traders account debit to sales, but we won't write the word sales. We would rather write export. Okay. So this is the way we need to put the transaction in. This would be Orient. I would also explain you why the Orient Traders account has to be debited. Why? What is the reason behind it? So it is Orient Traders account debit. Okay, this is Orient account, Orient Traders account debit. Now, why it has to be debited? Why it is debited? Because this is a personal. Yes, very good. It is debit the receiver, personal account. It is person. It is a company. Company is an artificial person. You have already learned in your SP subject. Okay, in 12th standard. So Orient Traders is a personal account which says if he is receiving, we have to debit it, debit the receiver. If he is giving, we have to credit it, credit the giver. But right now we are selling the goods to the Orient Traders. So the Orient Traders are the one who are receiving the goods. Therefore debit the receiver. 2. मेरे हाथ से goods गए to export. So export मतलब क्या? Goods को export करें ना हम. तो यहाँ पे आप goods को देखिए. गुड्स कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट. कोई भी असेट्स, कोई भी आपकी कोई चीज होती है ना, वो रियल अकाउंट होती है. तो गुड्स आपके लिए आपकी एसेट है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब रियल अकाउंट से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, assets debit what comes in, real account says debit what comes in, credit what goes out. So now goods are moving out from your godown, from your pocket, from your area it is moving forward to another area. So आपके यहाँ से तो जा रहे हैं ना, तो इसीलिए आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट को क्रेडिट करोगे. ठीक है, टू एक्सपोर्ट अकाउंट. और सेल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट लिखेंगे, या फिर ऐसे लिखेंगे एक्सपोर्ट सेल्स, वो भी ठीक है. अब लेजर फोलियो दिया नहीं हुआ है. अब ओरिएंट ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करेगा? मतलब ये एबीसी कंपनी ओरिएंट ट्रेडर को कितने से डेबिट करेगा? 1 lakh. 45 लाख. यस, 45 lakhs. वेरी गुड. यहाँ पे ना आपको नीचे ब्रैकेट बनाकर दे रही हूँ मैं, देखो इधर ब्रैकेट देखो. $1 इस दिन पे, देखो 15 दिसंबर 2004, इस दिन पे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. देखो उसको निकाला नहीं मैंने यहाँ से, क्योंकि ये रेट्स अभी मुझे चाहिए. तो 15 दिसंबर को $1 इज इक्वल्स टू कितना था? ये देखो $1 इज इक्वल्स टू कितना था? 45. यस, 45. $1 इज इक्वल्स टू 45 था. बट मुझे $1 का डीलिंग नहीं करना है. मैंने $1 की डीलिंग नहीं की हुई है ओरिएंट ट्रेडर्स के साथ. कितने डॉलर्स की डीलिंग करी हुई है? कितने डॉलर्स को डील किया है बताइए?
$1,00,000 के साथ डीलिंग किया है, मैं उनको $1 का गुड्स नहीं बेच रही हूँ, $1,00,000 के गुड्स बेच रही हूँ। तो हम लोग कैसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे? $1 इज इक्वल्स टू 45 रुपीज। $1 इज इक्वल्स टू 45 रुपीज। सो हाउ मच फॉर $1,00,000? आया समझ में सबको? इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। यस मैम। देखो ऐसी इक्वेशन ऐसे बनानी है, वो मैंने अलग अलग ब्रैकेट्स दिए हैं क्योंकि मैं पीसी पे कर रही हूँ ना ये, तो एक बड़ा ब्रैकेट नहीं दे पाऊंगी आपको, एक बड़े ब्रैकेट में लिखना है $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज, देयरफॉर हाउ मच फॉर $1,00,000 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1,00,000 इंटू 45 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 45 lakhs। आया समझ में कैसे करना है? This is the way we have to do, followed by narration also. So we have to write narration. What would be my narration? First you write down the journal entry. I will dictate the narration for you. Meanwhile, if you want, I can write it down. Note down the journal entry. So this is the journal entry and the narration. What is the narration? Being goods exported to Orient Company worth $1,00,000. गुड्स कितने के एक्सपोर्ट किए आपने? $1,00,000 की। और $1,00,000 को कन्वर्ट कैसे किया? $1 अगर 45 रुपीज है तो $1,00,000 कितने हो जाएंगे? So you have to cross multiply $1,00,000 into 45 rupees. So it comes to 45 lakhs rupees. तो हमने जो ये कॉलम बनाया ना, आपको चाहिए तो यहाँ पे समझ के ले लो, ये रुपीस में है। ये जो हमने कॉलम बनाए डेबिट और क्रेडिट के, ये रुपीस में बनाए हैं, ना कि डॉलर्स में बनाए हैं, क्योंकि हम तो इंडिया में है ना, ये हमारी होम करेंसी है। ये जो एबीसी कंपनी के बुक्स बना रहे हो आप, वो इंडिया की कंपनी है और इंडिया की होम करेंसी क्या है? रुपीस। तो मुझे तो रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना डॉलर्स को। आपने मुझे डॉलर्स दिए थे 1,00,000 की, पर अगर मैं 1,00,000 के डॉलर्स को 45 रुपीज के हिसाब से कन्वर्ट करूंगी तो 45 lakhs हो जाएगा मेरे हाथ में। आई बात समझ में कैसे करना है? यस, समझ आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड करो तो मैं आगे बढ़ूं। यस मैम। यस मैम। ओके गुड। नाउ इस दिन पे 15 दिसंबर को मैंने एक्सपोर्ट किया था, मतलब सिर्फ आपको मैंने गुड्स दिए थे, अभी तक मैंने आपसे अमाउंट नहीं लिया है। नोट इट डाउन समवेयर। अभी तक ये सिर्फ एक्सपोर्ट वाला हुआ, मतलब मेरे यहाँ से गुड्स निकल के आपके पास गुड्स पहुंचेंगे। कितने कितने के गुड्स? $1,00,000 के गुड्स। अगर $1,00,000 को मैं कन्वर्ट करूं रुपीस के हिसाब से तो 45 lakhs रुपीस मुझे मिलने चाहिए। अभी मिले नहीं हैं, मिलने वाले हैं। इतने के गुड्स मैंने आपको एक्सपोर्ट किए। ठीक है, इतना तो सब समझ गए होंगे। अब सेकेंड पॉइंट पे वो बोलता है 28 फरवरी के दिन पे मुझे पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो 28 फरवरी को रिकॉर्ड करते हैं हम। 28 फरवरी मतलब 2, सो 28 फरवरी 2005 ये हमारी डेट है जिस दिन हमको पेमेंट मिलनी है। करेक्ट, जिस दिन हमको पेमेंट मिलनी है वो डेट है 28 फरवरी 2002। अब 2005 मतलब लगभग 2.5 महीने के बाद
15 दिसंबर मतलब आधा दिसंबर, पूरा जनवरी और पूरा फरवरी, तो 2.5 महीने के बाद हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि 20 फरवरी को रेट क्या चल रहा था। ये है एक्सचेंज रेट, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। इस दिन पे $1 के बजाय एक्सचेंज करके मुझे कितना मिलेगा, 48 रुपीज। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट बोलते हैं इसको, मैंने पहले ही समझा। सो 20 फरवरी पे 48 रुपीज हो गया डॉलर का रेट, और डॉलर्स रेट इज ₹48। अब आप मुझे बताइए, मुझे पेमेंट रिसीव करना है कि पेमेंट मेड करना है? पेमेंट रिसीव्ड। वेरी गुड, क्योंकि एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट है तो पेमेंट रिसीव करना है। तो कोई मुझे एंट्री, देखो प्रॉफिट और लॉस मत सोचो, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो मत सोचो। आप मुझे बताइए जर्नल एंट्री क्या होती है जब हम किसी से भी पैसा लेते हैं? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश रिसीव ओरिएंट ट्रेडर्स अकाउंट। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल आंसर, वेरी गुड। सो एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट। अब है ना, याद रखो यहाँ पे तो कैश की कोई लेन देन ही नहीं है, कभी भी फॉरेन ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड आएगा ही नहीं, बिकॉज आप जाकर फॉरेन में थोड़ी जाएंगे और उनको बोलेंगे मुझे कैश दीजिए, नहीं, हमेशा बैंक इन्वॉल्व होती है। हमेशा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो बिजनेसेस होते हैं ना, बड़े बड़े लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे, उनके साथ कंपल्सरी बैंक इन्वॉल्व होती है। तो जो भी पैसा आएगा जाएगा, कमीशन होगा, वॉट एवर देयर विल बी, इट विल बी थ्रू बैंक अकाउंट, whatever it has to be, it will be through bank account. Okay, so बैंक अकाउंट, पैसा आया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो दिस विल बी डेबिटेड। ठीक है, इसको हम डेबिट कर देंगे। ओके, तो अब इसको डेबिट किया तो क्रेडिट किसको करूं? क्रेडिट किसको करना है, बोलो? यस, Orient traders. और ये पैसे कौन दे रहा है? हु इज द गिवर ऑफ द मनी? ओरिएंट ट्रेडर्स। देयरफॉर ओरिएंट ट्रेडर्स को हमको क्रेडिट करना है, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो मैं आपको ना रीजंस भी बता रही हूँ, डेबिट क्यों, क्रेडिट क्यों, क्योंकि सबको याद नहीं होते ना, या कोई कंफ्यूज हो जाता है। पहले ओरिएंट ट्रेडर्स को डेबिट किया था क्योंकि तब उसको गुड्स मिले थे, डेबिट द रिसीवर। अब वो गुड्स मिले तो उसने पैसे पे किए तो ही इज द गिवर ऑफ द मनी। मेरे बुक्स में, एबीसी के बुक्स मेरे बुक्स हैं, तो मेरे बुक्स में ओरिएंट ट्रेडर्स को तो मैं क्रेडिट ही करूंगी ना, बिकॉज मुझे पैसे कहाँ से आए? हु इज द गिवर? ओरिएंट ट्रेडर्स। सो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू ओरिएंट ट्रेडर्स, क्रेडिट द गिवर। ओके ओके, नाउ ये एंट्री है ना अधूरी है, मैं आपको खुद बता रही हूँ, जो मैंने लिखा है ना एंट्री, वो है ना अधूरी है। अब क्यों अधूरी है, इनकम्प्लीट क्यों है? इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि 15 दिसंबर को जब आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया था तब रेट चल रहा था 45, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। 28 फरवरी को जब आपने पैसा रिसीव किया उसी गुड्स के लिए, वही सेम गुड्स के लिए जब आपने पैसा रिसीव किया, उस दिन पे रेट चल रहा था 48 रुपीज $1 का, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। बट एक चीज मैंने आपको एक और सिखाई है जिसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन रेट। क्या रेट फ्लक्चुएट हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये इनकम्प्लीट है एंट्री, और अगर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो ये एंट्री अपने आप में कंप्लीट है। अब आप मुझे देख के बताइए, रेट फ्लक्चुएट हो रहा है कि सेम है? फ्लक्चुएट हो रहा है। कितने से फ्लक्चुएट हो रहा है? 3 लाख। 3 रुपीज। 3 रुपीज, 3 रुपीज को हम $1 लाख के साथ कन्वर्ट करेंगे, 3 lakhs हो जाएगा वो। वेरी गुड। तो इन शॉर्ट आप मुझे बताइए 3 रुपीज से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यहाँ पे देखिए मेरे कर्सर को, पहले था 45, बढ़ रहा है मैम। वेरी गुड, 3 रुपीज बढ़, म्यूट आंसर देकर म्यूट कर दो। ये देखो 3 रुपीज से बढ़ रहा है, 45 से 48 हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है बढ़ रहा है तो प्रॉफिट ही होगा और कम हो रहा है तो लॉस ही होगा, नहीं, सिचुएशन देखनी है। सिचुएशन मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब पैसा मिल रहा है, जब पैसा मिलता है और अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट, जब पैसा मिल रहा है और अगर रेट कम होगा तो लॉस। इसका बिल्कुल ऑपोजिट, द टिपिकल ऑपोजिट ऑफ दिस इज when you are importing the goods you have to pay the amount, and when you have to pay the amount
If the fluctuation rate is increasing, there is a loss. If the fluctuation rate is decreasing, there is a profit. क्योंकि आपको पे करना है ना, और अगर रेट बढ़ गया तो लॉस होगा ना, ज्यादा पे करना पड़ेगा. ओ माय गॉड, 3 लाख रुपीस ज्यादा पे करना पड़ेगा. और अगर रेट कम हो गया पे करने के टाइम पे, तो आपकी बल्ले बल्ले, आप कहोगे वाह 3 लाख रुपीस मुझे कम पे करना पड़ेगा, तो बल्ले बल्ले प्रॉफिट. तो it has to be, I mean, it has to be understood with the situation. You don't have to assume that rate बढ़ रहा है तो प्रॉफिट ही है, नहीं, वो देखना पड़ेगा एक्सपोर्ट है कि इंपोर्ट है. अब क्या है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या होता है, पैसा मिलता है. अब रेट बढ़ गया, ज्यादा पैसा मिलेगा. ऐसे खुद से क्वेश्चंस करो आप, देखो खुद ही क्लियर हो जाएगा फिर. अच्छा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के टाइम पे तो पैसा मिलता है, 45 से 48 रुपीज हो गया, बढ़ गया तो पैसा ज्यादा मिलेगा. मिलना है ना, पैसा तो मिलना है, ज्यादा मिलेगा मतलब प्रॉफिट है. अगर प्रॉफिट है तो एफईएफ को क्रेडिट करना है. अब आप बोलोगे मैम क्यों, उसका भी रीजन बता रही हूँ, वेट फॉर अ मिनट. टू एफईएफ अकाउंट. अब आप एफईएफ को, आप एफईएफ नहीं लिखोगे, आप एफईएफ का फुल फॉर्म लिखोगे. एफईएफ का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. और आपके लिए मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, एफईएफ अकाउंट हमेशा याद रखो, एफईएफ अकाउंट ऑलवेज इज अ नॉमिनल अकाउंट. एफईएफ अकाउंट हमेशा कौन सा अकाउंट होता है बताइए, एफईएफ अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट होता है. नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस ही तो जाते हैं. मैंने पहले ही क्लियर किया, ये वो रिजर्व, ये वो अकाउंट हम क्रिएट करते हैं जिसमें फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन की वजह से जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हुए वो उठाकर यहाँ डालो, यही अकाउंट में डाल दो. तो इस अकाउंट में क्या है, या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है. प्रॉफिट और लॉस ये सब नॉमिनल अकाउंट ही तो बात करता है. नॉमिनल अकाउंट क्या बात करता है, देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आ गया, लॉसेस वाली बात. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स आ गया, प्रॉफिट वाली बात, गेन्स मतलब प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट और लॉस की बात सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट करते हैं. नॉमिनल अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हर तरीके का प्रॉफिट और लॉस डील होते हैं. अगर लॉस है तो डेबिट होता है, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट होता है. ऐसा नॉमिनल अकाउंट के रूल में लिखा हुआ है. रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट करना है, ऐसा कहाँ लिखा है, नॉमिनल अकाउंट में लिखा है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो मैंने बरोबर किया है कि नहीं, आप बताइए मैंने बराबर किया है कि नहीं, यू ऑल टेल मी. राइट है. करेक्ट है ना, आपकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, मतलब जो मैंने सिखाया वो करेक्ट है. क्यों करेक्ट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है. अच्छा अब है ना, बैंक अकाउंट में कितना लिखना है देखिए. 48 लाख. हाँ, पर वो कैसे लिखना है उसका ब्रैकेट में यहाँ बनाती हूँ आपके लिए. देखो बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे, याद रखो, याद रखो हमेशा बैंक अकाउंट में उतना लिखना है जितना आपको पैसा मिल रहा है. जितना ओरिएंट ट्रेडर्स देने वाले थे पास्ट में, जितने आपने गुड्स बेचे थे, उतना रेट नहीं लिखना है, उतना लिखना है जितना आपको मिलने वाला है. 28 फरवरी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बोलता है, आपने जिस दिन पेमेंट, आप ओरिएंट कंपनी हो, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या बोलता है कि आपने जिस दिन पे करना है उस दिन का रेट उठाना है और उस हिसाब से पे करना है. तो आप किस दिन पे कर रहे हो मुझे, आप ओरिएंट कंपनी हो, आप मुझे पे कर रहे हो 28 फरवरी को, and what is the rate on that particular date, 48 rupees. So you have to pay me according to 48 rupees for $1. Therefore if $1 is equals to 48 rupees, how much will be for $1 lakh? 48. So yes, $1 lakh, you have to make this bracket, huh? Don't forget this. $1 lakh multiplied by rupees 48, bracket close. I will wait.
दिमाग खराब हो गया था कल साहिल और मेरा दोनों का, इतना म्यूट गंदा हाल म्यूट है। अरे फोन यश चार्ज नहीं हो रहा था। म्यूट। Okay, so this would be my 48 lakhs because $1 lakh is equals to $1 lakh into 48. So my answer will be 48 lakhs. Simple. कितना अमाउंट मिला आपको? 48 lakhs. अच्छा, ओरियन ट्रेडर्स को आपने गुड्स कितने के बेचे थे? हाँ, नो प्रॉब्लम यश, आप आगे ध्यान रखो, ठीक है। ओरियन ट्रेडर्स, अब ओरियन ट्रेडर्स को आपने कितने की गुड, कितने के हिसाब से गुड्स दिए थे? 45. 45. वेरी गुड। सॉरी, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। ये हम लोग अभी फिजिकल क्लासरूम में होते थे ना, 5 मिनट का समय, ये पर ये लैपटॉप पे करना बहुत प्रॉब्लमैटिक है। एंड वी आर यूजुअली हैबिचुअल ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, तो इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, सो 48 नहीं होगा, सॉरी, ये 45 होगा, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ओके, नाउ देखो, बड़े ध्यान से देखो, ओरियन ट्रेडर्स जो ऊपर मैंने डेबिट किए थे उसको 45 रुपीज के हिसाब से डेबिट किया था ना, तो अब क्रेडिट भी तो 45 के हिसाब से करूंगी। मतलब ओरियन ट्रेडर्स को तो मैंने गुड्स 45 के हिसाब से दिए थे, लेकिन पेमेंट मुझे 48 के हिसाब से मिल रही है। देयरफॉर देयर इज प्रॉफिट ऑफ ₹3 ऑन $1। समझ में आया आपको? तो ये 45 लाख ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे कितना लिखना है? 3 लाख। 3 लाख कैसे आया, रुको बताती हूँ। माइनस करके भी आ सकता है, 48 माइनस 45 लाख। अब ब्रैकेट में आपको लिखना है $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज, क्योंकि 3 रुपीज का डिफरेंस है ना, इसलिए आप लिखेंगे 3 रुपीज एंड ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट्स हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपको समझ में आए। अगर आप भी बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ओरियन ट्रेडर्स टू एफईएफ। बैंक हमेशा याद रखो, जितना पैसा मिलेगा, 48 के हिसाब से पैसा मिला तो 48 के हिसाब से बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब 48 लाख। ओरियन ट्रेडर्स पहले डेबिट कितने के हिसाब से हुए थे? 45, तो उतने के हिसाब से क्रेडिट होंगे। तो क्योंकि डेबिट और क्रेडिट के बीच में जो डिफरेंस है वो मुझे प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर एफईएफ को क्रेडिट करेंगे 3 लाख रुपीज से। और 3 कहाँ से आया? 48 रुपीज माइनस 45 रुपीज इज इक्वल्स टू 3 रुपीज, विच इज माई प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट रादर। क्योंकि प्रॉफिट तो देखो 45 लैक्स में जो मैं आपको गुड्स बेच रही हूँ ना, उसमें भी मेरा प्रॉफिट ही है। लेकिन क्योंकि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जो है उसका रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया 3 रुपीज का, $1 के पीछे। देयरफॉर 3 लाख रुपीज का मुझे टोटल एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, इसमें नरेशन लिख देते हैं हम लोग। बीइंग द पेमेंट रिसीव एट द रेट 48 रुपीज पर डॉलर, पर डॉलर लिखो या $1 लिखो, बात एक ही है। एट द रेट 48 रुपीज पर डॉलर, and the profit is credited to FEF account। हमने प्रॉफिट किधर क्रेडिट किया, मतलब किधर डाल दिया? क्रेडिट करना मतलब डाल देना। सो बीइंग द पेमेंट रिसीव, पेमेंट मिला किस हिसाब से? 48 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से। तो क्योंकि पेमेंट 48 रुपीज के हिसाब से मिला, तो जो प्रॉफिट हुआ वो हमने एफईएफ अकाउंट में डाल दिया। सो सिंपल एज दैट। ठीक है, आप ये सेकंड पॉइंट भी लिख दो, सेकंड जर्नल एंट्री पास करो। Yes, have you done it? Are you guys done? Yes. Now the last journal entry. आप बोलोगे मैम अब तो कुछ नहीं है, सब में क्वेश्चन तो हो गया खत्म, तो अब कौन सी लास्ट जर्नल एंट्री है? वो अब मैं आपको बता रही हूँ, वेट।
लास्ट जर्नल एंट्री क्या होती है? कंपल्सरी। देखो बड़े ध्यान से सुनो, जो एफईएफ अकाउंट होता है ना, जो एफईएफ अकाउंट हमने क्रिएट किया, वो क्रिएट क्यों किया था? क्योंकि डॉलर्स में प्रॉफिट हुआ ना। $1 लाख पे ₹3 का प्रॉफिट हुआ, देयरफॉर इसको हमने कन्वर्ट किया तो 3 लाख रुपीस हो गए। $1 इज इक्वल टू ₹3 का प्रॉफिट। अब ₹3 का तो मैं नहीं दिखाऊंगी ना, उसको कन्वर्ट करूंगी। $1 लाख का जो मैंने ₹3 के हिसाब से अर्निंग्स किया, प्रॉफिट किया, उसको कन्वर्ट करूंगी मैं रुपीस में, तो 3 लाख रुपीस हो जाएगा। अब ये 3 लाख रुपीस कन्वर्ट हो गया, पूरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गई। याद रखो बुक्स को क्लोज भी तो करना है, तो 31 मार्च आ गई। अब 31 मार्च के दिन पे, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग डेट, ऐसा ना सम क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया था, देखो द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, लिखाया था मैंने ये। इसका मतलब है 31 मार्च को, देखो ईयर खत्म हो गया, अब जब साल खत्म हो जाएगा तो आप देखोगे, अच्छा ये एफपीएफ अकाउंट मैंने जो क्रिएट किया था, इसमें पहले 2 महीने में प्रॉफिट हुआ था, फिर 3 महीने में लॉस हुआ, फिर 2 महीने में प्रॉफिट हुआ, फिर 2 महीने में लॉस हुआ, तो टोटल कितना बचा? समझो टोटल बचा 3 lakhs। अब वो लास्ट में जो बचा हुआ एफईएफ अकाउंट में 3 lakhs है ना, वो उठाकर एफईएफ अकाउंट से निकाल के आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि बेसिकली एफईएफ आपका बिजनेस का अकाउंट जो है ना, वो फॉरेन का अकाउंट है, लेकिन आप तो रुपीस में कन्वर्ट कर चुके हो ना 3 lakhs को। अब तो 3 lakhs आपके बिजनेस का ही है ना, तो बिजनेस का जो पीएनएल अकाउंट है उसमें आप ऑफिशियली दिखा दो कि ये 3 lakhs मेरे बिजनेस का ही है। वो मैंने अलग इसलिए रखे थे एफईएफ में क्योंकि वो फॉरेन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था, तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए साल भर में जितना भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस एफईएफ में दिखाते हैं, लेकिन साल खत्म होने पे एक साथ ऑल टुगेदर द अमाउंट आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉसेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट आई हैव टू ट्रांसफर द एफईएफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Now, how to transfer? Transferring is the very important entry. It will not be disclosed in the question. That is something that you have to do it by your own self. कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा एफईएफ को उठा के ट्रांसफर करो, नहीं, खुद से करना है। एफईएफ को क्लोज करना है, पीएनएल में ट्रांसफर करना है, एक अकाउंट से उठा के पैसा दूसरे अकाउंट में डालना है बस। अब ट्रांसफर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट एंट्री में एफईएफ है क्या, नहीं है, छोड़ दो। सेकंड एंट्री में एफईएफ है, हाँ है। कौन सा बैलेंस दिखा रहा है आपको एफईएफ का? क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट। अब देखो देखो बहुत सिंपल है, ट्रांसफर कैसे करते हैं। क्रेडिट बैलेंस की कोई भी चीज उठाकर आप दूसरे अकाउंट में डालोगे तो कॉमन सेंस से क्रेडिट बैलेंस तो कैंसिल हो जाएगा ना, खत्म। तो अगर आपको कोई भी चीज ट्रांसफर करनी है तो क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करके डेबिट बैलेंस दे दो, खुद ही ट्रांसफर हो जाएगा। ये देखो एफईएफ अकाउंट, डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। आपने सबका फुल फॉर्म लिखना है। हाँ, एफईएफ अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट होता है, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ऑफिशियली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ऑफिशियल बिजनेस का अकाउंट होता है, जिसमें आप कंपनी के सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सिर्फ फॉरेन ट्रांजेक्शन की नहीं, सारा जो आपका होल बिजनेस है, जितना भी बिजनेस है आपका, जिससे भी रिलेटेड प्रॉफिट होता है वो इधर आते हैं, जिससे भी रिलेटेड लॉस होता है वो इधर आते हैं। ठीक है, तो एफईएफ अकाउंट को हमको ट्रांसफर करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में एफईएफ नहीं है, छोड़ दो। सेकंड में एफईएफ है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है, तो आपको क्रेडिट बैलेंस को कैंसिल करके डेबिट देना पड़ेगा, तब तो ट्रांसफर कर पाओगे आप। 3 lakhs का क्रेडिट बैलेंस पड़ा था आपके एफडी में, सेविंग अकाउंट में, समझो ये आपका सेविंग अकाउंट है। 3 lakhs रुपीज क्रेडिट बैलेंस पड़ा, क्रेडिट मतलब आपका खुद का पैसा पड़ा है। अब आपने एफडी करानी है, बैंक को आपने बोल दिया ये 3 lakhs की ना मुझे फिक्स डिपॉजिट करके दो, तो अब 3 lakhs रुपीज निकाल के वो एफडी में डालेंगे ना, है ना। यही 3 lakhs रुपीज सेविंग अकाउंट से निकल जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब डेबिट, डेबिट मतलब कट हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ चला जाएगा ये 3 lakhs? आपके एफडी के अकाउंट में चला जाएगा, एक अकाउंट से निकल के दूसरे अकाउंट में चला गया। तो यही 3 lakhs
मैंने FEF को डेबिट कर दिया, मतलब FEF के अकाउंट से निकाल दिए, और यही 3 lakhs मैंने कहाँ पे उठाकर डाल दिए, आपके FD के अकाउंट में, मतलब P&L अकाउंट, कंपनी का जो ऑफिशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस हो गया। अब आपको क्या करना है, लास्ट में नरेशन लिखना है, बीइंग द FEF account is transferred to P&L account. That's it. नरेशन आप जितना सिंपल लिखो उतना सही। ऑलरेडी आपके पास टाइम नहीं होता पेपर में, क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, खत्म, फिनिश। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछिए। आप देखो मैं फिर से बता रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा दैट यू हैव टू ट्रांसफर FEF टू P&L अकाउंट। दैट इज योर ओन अजम्पशन, ओन स्टैंडर्ड प्रिंसिपल। ये लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के लिए मैं बता रही हूँ आपको। दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 विच सेज एट द एंड ऑफ द ईयर the whole balance of FEF account after setting of the losses, you have to transfer the balance of the amount to the P&L account. So whatever the balance is left has to be taken to the P&L account. So now the balance is 3 lakhs rupees. Therefore, whole amount of 3 lakhs rupees is taken out from FEF account and put it into P&L account. So here we are done with the sum. अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। दिस इज कंप्लीट प्रॉब्लम that is before you. See, if you have any doubt, please ask me. We are closing the lecture today because एक ही सम में हमको इतना टाइम लग गया। बेसिक हम मुझे क्लियर करने थे, तो इसलिए हम एक ही सम कर पाएंगे आज। ओके, आपको मैंने ज़्यादा करवा दिया ना, तो पहले की पॉइंट्स, पहले की सारी चीज़ें जम्बल्ड अप हो जाएंगी। बेटर हम लोग एक ही सम करें, अच्छे से करें, ठीक है। कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे बताइए, शेयर इट विथ मी। यस, एनी डाउट्स? आप क्वेश्चन, आपने सॉल्यूशन कॉपी किया होगा आई बिलीव। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, एनी डाउट सो फार? No, ma'am. नो, श्योर? Yes, ma'am. Okay. I hope you are understanding my way of teaching. Is that Yes, ma'am. okay? Is that okay for you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good, good, guys, good. So, you want some more time to complete the question, or should I end the lecture? Yes, you want some more time to copy down the sum, or you are done with No, it? ma'am. Complete. Complete हो गया ना? Completely, ma'am. कंप्लीट हो गया, Ma'am. वेरी गुड, गुड गुड जॉब। चलो बढ़िया। अब मैं चाहती हूँ आप, है ना, नेक्स्ट लेक्चर मैं सोनी मैम को बता दूंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपने ये सारा कुछ रिवाइज करके रखना है, ठीक है। ये सम एक और बार प्रैक्टिस करके रखना है। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, सॉल्यूशन बिना देखे आप प्लीज एक और बार खुद से ये प्रैक्टिस करके देखना। देखो बहुत इजी है, अगर आप इजी लोगे तो वो इजी लगेगा, ठीक है। सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट। ओके, विल यू बी डूइंग दैट? करेंगे साहब, प्रैक्टिस एक बार कर लोगे? Yes, ma'am. ओके, गुड गुड, चलो बढ़िया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए सोनी मैम से मैं कांटेक्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ मैं कभी ले सकती हूँ। मे बी टुमारो, अगर मैं कल ले सकती हूँ ना, तो मैं सोनी मैम को आज आफ्टरनून तक बता दूंगी या 4 o'clock इवनिंग तक बता दूंगी, एंड शी विल कम्युनिकेट विथ यू। इज दैट प्रिटी फाइन? ठीक है, ऐसा चलेगा? Yes, ma'am. Okay, great job. Chalo. So I am ending the lecture now. If you have any doubts, we can clear it tomorrow or in the next lecture. Thank you, everybody. I hope you I hope you have enjoyed the lecture, and please keep revising. Thank you, everybody. Stay home, stay safe.
Bye everyone. Bye. Bye beta. Bye, Bye. ma'am. Bye, Bye ma'am. beta. Bye everyone.